am handling a team of 10 members and I have only 5 hours of working. Matlab bank has only given, I have been appointed by bank only for 5 hours, but I am working for 15 hours because वो 5 घंटे टीम्स के डाउट्स लेने में ही चले जाते हैं. I woke up early in the morning and I end my day just talking with the people with their problems, and I complete my work in the late night. तो दिस इज द स्ट्रगल कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज. अगर मैं प्रायोरिटाइज ही नहीं करूंगा, उनके डाउट्स को कवर ना करूं, तो वो लोग तो पूरे दिन काम ही नहीं करेंगे बिकॉज वो तो आप लोगों की तरह फ्रेशर्स हैं, नहीं करते लोग काम. वो इवेंचुअली टीम का रिपोर्टिंग मैं हूं और सीनियर्स जो हैं वो मेरे को क्वेश्चन करेंगे, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कहीं ना कहीं कि इनसे काम लेना. तो वो मेरे को प्रायोरिटाइज करना रहता है. तो प्रायोरिटाइज करना, इंस्टेंट रिप्लाईज देना, अपने आप को अपडेटेड रखना ऑफिस के कल्चर से, क्या हो रहा है ऑफिस ऑफिस में, ऑफिस पॉलिटिक्स को झेलना. ऑफिस पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा शब्द है. एचआर लोग तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है. थर्ड स्टेप दैट आई डिस्कवर देयर इज एंटरिंग इनटू कॉर्पोरेट लाइफ. From here, your life will totally change. This is feel like totally a different planet where your assignment will turn into targets. Your teachers will turn into managers. There's a huge difference. Now, your mistakes will not consider as or not, they will be not ignored there. If you make mistake, you have to bear and it may lead to your job गई हाथ से. कुछ गलत काम किया, गई. I was been in that scenario. My work is to identify fraud, and I closed one case of Ambani Group, and they were doing something malified. So that was initial of my career. I could not identify that. 2 months later, that was recalled by ED. I was called to the ED room. That was my first meeting with ED. More than 70 people are sitting in front of me, and I have to explain why I have closed this. I have not slept a day before when I got mail from my senior manager that you have to appear for ED round and you have to prepare yourself for giving clarification. I was so nervous कि मैंने ये क्या कर दिया. बट गलती है, हम एआई तो है नहीं कि गलती नहीं कर सकते. तो गलती हुई, but I was not prepared to explain myself that what are the reason I can give that this can see something is suspicious from your end. It doesn't mean that I also feel the same way. It could be there could be many ways to a particular situation that happened exactly to me. I was given a notice period of 6 months. Either I have to identify more 7 cases of the same company or I have to leave the organization. That was a very clear notice to me. And from that day, my journey started. I connected with my manager. I asked that what should I do now? I'm not that experienced in finding fraud cases because I have just started. And अभी जैसा रवि ने बोला कि ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं होता कॉर्पोरेट में. You have to survive by yourself. अगर आपको अच्छे मैनेजर मिल जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन. बट मेरे मैनेजर ने मुझे सपोर्ट किया. दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू प्रिपेयर दिस वे एंड आई प्रिपेयर फॉर आरबीआई एग्जाम. बिकॉज आरबीआई के एग्जाम के प्रिपरेशन में देयर इज अ फेज where you have they will give you the cases and you just have to prepare the reports. My target was 7 and I have completed 72 cases there for the same company. And my second promotion was due to that reason. I was a month later, I was promoted to senior manager then. And after that, things changed. I have been now team lead also. I am handling the 10 members. So this is how you have to like. अगर possibilities कहीं भी दिखती है ना तो you should take it. Take every possibilities you get. Then the fourth thing is challenges you will face. See, unlearning classroom theories to apply practical solution and facing pressure and accountability is very common to the corporate life.
अनलर्निंग इन सच अ मैनर कि यहाँ पे आपने जो सीखा वही आपको काम नहीं आएगा कॉर्पोरेट में, या फिर आप उन थ्योरीज के बेसिस पे ही कॉर्पोरेट लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते. यू हैव टू लर्न एंड अनलर्न. I have done 3 certification from IIBF. I have certified banker from IIBF. I have qualified their main exam. I have qualified their pre-main exams. And I keep on working on my certification courses. I keep my eyes that which company is providing their certification courses. So you guys can also enroll yourself, because these programs are only online programs. You can enroll here and you can appear for the exam. So this also helped me a lot. Certification collect करना, मेरे को वैसे भी बहुत शौक था सर्टिफिकेट्स लेने का. तो मेरे को सर्टिफिकेट्स आते रहते थे 6 मंथ में, तो अच्छा लगता था अपने लिंक्डइन पे अपलोड करने के लिए. पोस्ट ही नहीं मिलते थे. अभी मैनेजर लेवल पे है तो अपनी फोटोज तो अपलोड नहीं कर सकते, थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है. लोग आपको फॉलो करते हैं तो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है. अभी क्या करना चाहिए, मेरे को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत पसंद है. तो आई स्टार्टेड enrolling myself to different certification courses, and today at present I have 16 certification from IIBF, which is another target that I have achieved while working in with Axis Bank. And then the last I would say that growth with good pay. देखो सैलरी तो सबको अच्छी चाहिए होती है, बट उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता. And companies identify most of the employees who are doing that. You will be laid off, literally. You will be given only 30 days of notice period. And अगर आपकी स्टेज पे मैं अगर कॉर्पोरेट में ना जाकर अगर कॉलेज लाइफ में बात करूं, तो एवरीवन यू विल बी थिंकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट प्लेसमेंट. बट दैट इज नॉट इट. प्लेसमेंट तो हो जाएगी. आई गेस आपका जॉब करने का मन ना करे, you may enter into entrepreneur. So thinking just only through a perspective of placement, that is not good. Diversify knowledge lena is a good option here. Whether you take finance, whether you take marketing, or anything you take HR. I have so many friends who have taken HR, but initially they have to work as a marketing agents, and then they have started 2 years later into HR profile. So struggle is there, but definitely if you think, if you have dreams, then this universe will give you wings to fly. But if you can't dreams, then wings कहाँ से आएंगे? Wings तो आपको ही arrange करने पड़ेंगे फिर कहीं से. So dream big, don't hesitate to dream big. If you dream big, then only this universe will help you to fly. And if you once fly, then I'm definitely sure, because मेरे से ज़्यादा ढीठ बच्चा इस कॉलेज का कोई होगा नहीं. मैं बहुत 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 कंप्लेनिंग स्टूडेंट रहा हूँ इस कॉलेज का. हमेशा मेरे को कंप्लेन रहती थी हर चीज़ से, और अभी सब सेम कंप्लेन्स मेरे को आती हैं, तो मेरे को फील होता है कि मैंने कितना इरिटेट किया होगा अपने टीचर्स को. I can feel that. And that is all from my side. I wish you all a very happy journey ahead. May God bless you all. Morning, everyone. So, as she already told about me, I'm working as a senior manager with Genpact. It's been almost 9 years. Though I started with CA as a profession कि मुझे CA करनी है. Along with that, I started with BCom. एक साल में पता चल गया हमसे ना हो पाएगा. So I left CA, but हाँ, I'm thankful कि उस टाइम पे मुझे पापा ने बहुत गाइड किया. He was like सपोर्टिंग मी थ्रू कि कुछ ना कुछ तो प्रोफेशनल कोर्स करना है. मतलब बीकॉम है तो व्हाई आई शुड गो विद बीबीए. इट्स ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स हैं, बस इट्स जस्ट अ डिफरेंस कि कुछ सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में है लेकिन वही बीबीए के 6 सेमेस्टर में है, तो क्यों. बट देन आई रियलाइज कि जब आप बीबीए करते हो इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स. विद प्रोफेशनल कोर्स यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कि खाली आपको बस पेपर लिख के पास करके बस ये नहीं दिखाना कि हाँ जी हम ग्रेजुएट हैं. इट इज मोर लाइक दैट यू गेट द एक्सपीरियंस, यू गेट द एक्सपोजर, यू गिव द प्रेजेंटेशंस, you talk to people, you communicate, you sit for the viva, you create a report, you meet the deadlines. So you are already
was all formal kapde. I had this complaint, but now I realized when I went to my second company, there my trainer, he said one thing, जहाँ पे आपको पहुँचना है ना उसके हिसाब से कपड़े पहनो. That's when I realized कि अभी से हम लोगों को प्रोफेशनल कपड़े पहनने की आदत क्यों दिलाई जाती है, ताकि हम आगे जाके ये ना करें कि यार कैसे करना है. एंड मेरी जर्नी वॉज बीकॉम तो थी, उसके बाद आई स्टार्टेड विद बीबी. अब एक साल हो चुका था बीकॉम का, तो आई कंटिन्यू डूइंग इट अलॉन्ग विद बीबीए. इट वॉज वेरी टफ. In morning I used to give 10 to 1 BBA का exam. Then in 3 to 6 I used to go for BCom का exam, and so center was also sometimes बहुत दूर दूर. चलो वो हुआ जैसे तैसे. In sixth semester I remember I was attending a Aparna ma'am's lecture. जैसे ही उनका lecture over हुआ, I got a call from the HR because मेरे को पता नहीं कहाँ से था कि I have to get a job. और पता नहीं क्यों आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट मुझे एक फिगर था दिमाग में. उस टाइम पे 25,000 सैलरी बहुत होती थी. इट्स लाइक 10 years बिफोर. तो 3 साढ़े 3 का पैकेज बीइंग अ फ्रेशर, आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक 5 कि ठीक है इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम में नहीं जाऊंगी. तो आई अप्लाइड, और वो ऐसा नहीं कि एकदम रैंडमली कॉल आ गई. मैं रोज घर जाती थी. आफ्टर दैट आई यूज्ड टू, तब लिंक्डइन वाज नॉट दैट पॉपुलर. दैट टाइम naukri.com ट्रेंड में था. तो आई यूज्ड टू पुल आउट द नंबर्स, ईमेल आईडीज, सेंड माय रिज्यूमेस. आए रिस्पॉन्स या नहीं आए, बट मेरे पास ईमेल है, नंबर है, कॉल करो. तब व्हाट्सएप भी बहुत अभी इनिशियली लॉन्च पर इतना ट्रेंड में नहीं था. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रिक्रूटर. आई टॉक टू हिम. आई फाउंड इट कि ठीक है आ जाते हैं. और यही टाइम था, 6 सेमेस्टर लगा लो, अगस्त मॉनसून टाइम. तो भीगते भीगते जैसे तैसे आई रीच देयर. मेरे को ये भी नहीं पता था, इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, बट एनी हाउ आई क्रैक्ड इट. मुझे नहीं पता क्या वो कॉम्स थी क्या था, आई क्रैक्ड इट. आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, जो अमाउंट डिसाइडेड था, जो सोचा था, उतनी सैलरी मिल गई. अब एमबीए करना था. अब 1 महीना था. द रिक्रूटर आस्क्ड मी वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years. अब उससे क्या बोलती, मैं तो 1 महीने के लिए आई हूँ टिल आई डोंट गेट माय एमबीए काउंसलिंग रिजल्ट. बट ठीक है, तो मैंने बोला आई सी माई सेल्फ टू बी एट अ सीनियर पोजिशन एट दिस लेवल. बोलना पड़ता है टू गेट अ जॉब. दिस इज हाउ इट इज. सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द जॉब, पापा ने बोला बेटा एमबीए तो करनी है. मैंने कहा पापा एमबीए ठीक है कर लूंगी, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी. दैट वाज अ नाइट शिफ्ट. सो आई मैनेज माय रेगुलर एमबीए फ्रॉम मेरी कॉलेज along with the night shift, which was very troublesome. मेरे को 50-50 घंटे हो जाते थे सोए हुए. लाइक सुबह आई हैव टू, रात को आई एम डूइंग नाइट शिफ्ट, देन आके पेपर दिया. पेपर देने के बाद आई हैव टू गो बैक टू माय जॉब, कंप्लीटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी वो निपटा के. इंटरनल्स होते थे, तो इंटरनल्स भी आई यूज टू डू इट टू ब्रेक. एंड दैट वाज हाउ आई वाज बीइंग ट्रेन्ड, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सब हम वर्ड सुनते हैं. जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल थ्योरेटिकल, बट इन प्रैक्टिकल व्हेन यू एक्चुअली अप्लाई इट, इट मेक्स सेंस. एंड फिर उसके बाद वो भी काफ़ी हेक्टिक सा जर्नी रही. लेकिन हाँ, जब मैं एमबीए की प्लेसमेंट के लिए जाती थी, तो तब मुझे ये नहीं बोलना पड़ता था कि हाँ मुझे इस प्लेसमेंट में बैठना है. बल्कि मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं तेरे पास तो ऑलरेडी जॉब है. और जो प्लेसमेंट उस टाइम होती थी उससे ज़्यादा आई वॉज ऑलरेडी अर्निंग. तो वो इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ पे बीसीआईपीएस में बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था नॉलेज के हिसाब से. जो मेरे पास वो टाइम था बीकॉम और बीबीए करते करते, या फिर जो कि मुझे एमबीए में इतना एफर्ट पुट ही नहीं करना पड़ा. इवन दो विद माय रेगुलर जॉब आई वाज एबल टू क्रैक ऑल. और मेरी एक भी कोई बैक नहीं थी एमबीए में, कि मतलब होता है कि जॉब के साथ बहुत मुश्किल हो जाता मैनेज करना. और वो 8 hours प्रॉपर जॉब थी. आई वाज गिविंग माय ऑल डेडिकेशन एंड टाइम ओवर देयर एज वेल. लेकिन वो जो एक बेस होता है, एक फाउंडेशन होता है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आपको अपने मैनेजर को भी कन्विंस करना आना चाहिए कि आप उस 8 घंटे में से अपने असाइनमेंट्स लिखने के लिए, अगर 1 घंटे की ब्रेक है तो यू एक्सटेंडेड टू 1 or 1.5 hours. यू नीड टू हैव दैट फॉर्म्स, जो कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स में जब बोला जाता है कि आप प्रेजेंटेशन दो, आप आके बोलो, वो जो एक स्टेज फियर होता है वो सब निकाला जाता है. दैट इज हाउ यू स्टार्ट. तो
रॉकेट साइंस इन पासिंग अ बीबी एग्जाम और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बट व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, एचआर में जाओ, फाइनेंस में जाओ, मार्केटिंग में जाओ, कुछ चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। लाइक यू रियली नीड टू नो कि अगर मेरे को प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, अगर आप फाइनेंस में हो, आप अपने नंबर शो करोगे, कैसे शो करोगे इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, यू हैव टू यूज द पीपीटी, यू हैव टू यूज द पावर पॉइंट। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आप यहाँ से स्किल डेवलप कर सकते हो। अगर आप मार्केटिंग में हो, यू नीड टू हैव अ कॉम्स। अगर आप मार्केटिंग में और आपको किसी से कम्युनिकेट नहीं करना आ पा रहा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग विद दैट फ्यूचर। तो दैट कम्युनिकेशन ऑल्सो, ये जो होती है डिबेट्स होती है, डिबेट्स का मतलब ये नहीं होता कि हम चीख रहे चिल्ला रहे हैं। वी शुड नो कि हमें दूसरे का पॉइंट को कैसे सप्रेस करके अपना पॉइंट रखना है विदाउट किसी को रूड ना फील हो, किसी को ऐसा ना फील हो कि आपकी बात को तो सुना ही नहीं जा रहा और ही इज बीइंग कंप्लीटली ऑपोजिट। तो एक सर्विस नो करके भी चीज़ होती है जो हमें एक इंडस्ट्री में आनी चाहिए। आप हर एक को डायरेक्टली नहीं बोल सकते। एंड जो फीडबैक्स होते हैं, हम हमेशा उसमें अपनी किताबों में पढ़ते हैं, फीडबैक्स जो प्रोसेस होते हैं, किसी भी प्रोसेस में फीडबैक कहते करेक्शन आता है। आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज बी रेडी फॉर फीडबैक्स। फीडबैक्स नेगेटिव जरूर होते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी भी उसमें जाओ, ऑलवेज सरेंडर योरसेल्फ कि हमें नहीं आता कुछ, आप जो सिखा रहे हो दैट इज समथिंग दैट वी आर लर्निंग। बिलीव मी, जब आप ग्राउंडेड रहोगे, रूटेड रहोगे, इस मोड में रहोगे कि ठीक है हमें नहीं आता, हम वी आर रेडी टू लर्न फ्रॉम यू, वी आर रेडी टू इवॉल्व फ्रॉम द फीडबैक्स, पीपल विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू। और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सीमलेसली एफर्टलेसली होंगी, बिकॉज इन कॉर्पोरेट्स यू कैन नॉट हैव अफोर्ड टू हैव और शो कि अपने घर वालों की तरह जैसे हम बोल देते हैं कि नहीं मम्मी मेरे को, यू कैन नॉट शो एंगर टू देम, यू हैव टू बी पोलाइट एंड यू हैव टू, और आप उनसे हेल्प सीधा भी नहीं मांग सकते बिकॉज इट सीम्स कि ठीक है इसको तो कुछ भी नहीं आता, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी पड़ती है, राइट? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक हम्बल बिहेवियर के साथ रहो, रूटेड रहो, ग्राउंडेड रहो, उनकी बात को सुनो, देन पीपल विल डेफिनेटली हेल्प यू। एज मीका वाज आल्सो मेंशनिंग एंड द प्रीवियस स्पीकर वाज आल्सो मेंशनिंग कि कभी भी आपको फ्रेंडशिप के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नहीं होती ये सारी चीज़ें। हम चीज़ें पढ़ते हैं पॉश, दिस इज़ वेरी कॉमन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये शायद आज हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ओके पॉश करके कुछ होता है, बट believe me, trust me, when you actually go to the corporate, these things you should know। अगर आपके साथ कभी कोई behave कर रहा है ठीक से नहीं कर रहा, you should know when to raise a complaint। if you are being not being good और आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, तो आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू एक यहाँ से एक फ्रेशर की तरह निकलते हो, तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है उससे बहुत कुछ पता चलता है। एक फ्रेशर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इवन दो ही इज वेयरिंग मतलब प्रॉपर ऊपर से नीचे तक फॉर्मल कपड़े पहने होंगे, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज और इन सब से चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो दैट इज द टाइम, कुछ भी हो, आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, कोई भी फील्ड चूज करो आगे जाके, ऑल यू हैव टू फोकस इज ऑन योर स्किल्स। यू हैव टू फोकस कि आप एटलीस्ट, कोई आपको रैंडमली बुलाए तो आप एटलीस्ट बात तो कर पाओ उन लोगों से। आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि नो सॉरी आई कांट डू इट। if you have chosen or come into this professional studies or world, so you should be prepared and ready for to be a speaker, to communicate। अगर आप अपनी चीज किसी को नहीं बताओगे, people would not understand you and you will feel suppressed every time in the corporate world। so communication is a very good thing and this is a great platform I would say। जो भी डिबेट्स होती हैं, जो भी कंपटीशन होते हैं, जो भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, डू इट। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं तो फर्स्ट टाइम अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सेकेंड टाइम अगर इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो, तो डू टॉक। आई नो द फैकल्टीज ओवर देयर हियर, दे आर वेरी सपोर्टिंग। अगर आप कहोगे कि मैम मेरे को थोड़ा सा इशू है टू स्पीक अलोन, दे विल से ओके गिव अ ग्रुप प्रेजेंटेशन। इससे क्या होगा, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है, अगर मैं चुप हो भी गया, हो भी गई, तो सामने वाला हैंडल कर लेगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो। सर्टिफिकेशन दिस विल कीप ऑन इवॉल्विंग टिल आप कॉर्पोरेट में हो, आपको टेक्नोलॉजी से और आपको स्किल से अपग्रेडेड और बैलेंस रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू द सर्टिफिकेशंस, कुछ ना कुछ चेंज होता है। एंड इफ यू आर, और प्रायोरिटीज भी डिफरेंट होती है। मे बी कई लोगों की प्रायोरिटी होती है कि हमें तो आराम की जॉब चाहिए, लेकिन
वहाँ पे जब आराम की जॉब होती है वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। लाइक एचआर, एडमिन, ये जो रोल्स होते हैं दे आर मोर लाइक अ सपोर्टिंग फंक्शन। तो जब भी कंपनी में इश्यूज आते हैं तो सबसे पहले इन रोल्स को और इन लोगों को एलिमिनेट किया जाता है। देन कम द पीपल हु आर रिसेंटली हायर्ड। सो चूज व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। बाकी सारे उसमें मेहनत ज़रूर है। लाइक मेरा एचआर है, मुझे पता आज मैं आई एम एट अ सीनियर पोजीशन, आई कैन इजीली go into core HR, but I don't go. I always prefer to be into HR operations because मुझे पता है क्लाइंट से पैसा आ रहा है, they are liable to pay me, I have good relations with them. So ये जो चीज़ें हैं ये आप अपना मैनेज करके, हर एक का अपना अपना होता है। कईयों को होता है कि मुझे बीबीए करके बिजनेस करना है, तो फॉर दैट पर्सन जस्ट द कॉम्स इज इम्पोर्टेंट टू हैंडल द क्लाइंट्स, टू हैंडल द स्टेक होल्डर्स। तो सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, तो गो बाय दैट। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आपको ये तो आना ही चाहिए, आपको पावर पॉइंट तो आना ही चाहिए। अरे ठीक है, बिजनेस है, घर का है, तो बैठना है, उसके लिए चीज़ें मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन पावर पॉइंट समझना। Suppose if someone has a furniture का showroom, so you really need not to have a PowerPoint का presentation over their skills. वहाँ पे जो important है वहाँ पे आपको finance और अपनी balance sheet और ये सब important है। और पैसा और ये finance सिर्फ यहाँ तक limited नहीं कि आपको job मिल गई। finance का रोल आगे भी बहुत है। आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन how you really manage it, it also really involves a lot of efforts and energy। कि आप उस पैसे को save करके how you are multiplying, that also comes। जो आज हमारे पास टाइम है हम सीख सकते हैं। देयर आर सो मेनी कोर्सेज ऑनलाइन जो कि दे आर नॉट लाइक कि आपको आगे जाके जॉब में हेल्प करेंगे, बट आप अगर यू वांट टू नो कि किस स्टॉक में, किस शेयर में, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो सब आपको पता चल सकता है। कम से कम एट द एंड ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी वी ऑल आर वर्किंग और डूइंग इज टू मल्टीप्लाई द मनी। सो वो आप कमाओ या फिर आप मल्टीप्लाई करो अपना पैसा, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। सो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ओनली सजेशन इज कि